Welcome back, beautiful people, to this episode. In this episode, we are going to talk about the pranic system or the energy systems. Now, if I ask you, when you use a computer, what do you see usually in that? You see a hardware and then software. But do you think just hardware and software are enough for a computer to run? No, because you have to plug the computer into the socket, and then the energy comes into the computer, and using that energy you use the computer, right? Similarly, our body works like a hardware, our mind works like software. Even if they are there, you cannot use them unless and until you have the energy inside you, and this energy is nothing but the prana. This hand of mine, okay, each fingers are individual in nature, right? But however, they all of them have one thing in common, that they are connected to my hand. If I'll tell you that, imagine for a moment, if I cut them off all, and if I put them separately, make them completely individual without connected to me, myself, or without connected to my hand, do you think they are going to be individual in nature, or they are still going to be the part of my hand? Definitely they are individual in nature, but still they are part of me only. The fact that they came from me doesn't go anywhere, it's there. They came from me, and that is the fact. Similarly, you have to understand that this earth, this universe, given us the birth, right? There is nothing like somebody put one human on this planet earth and then we are just multiplying ourselves so many folds. This is not how it works, right? We understand that the human system or humans actually created through earth or created by earth. अब अगर हम पेड़ों की बात करें तो वो कनेक्टेड है अर्थ से, हम कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम अर्थ के हिस्सा नहीं है, अर्थ के हिस्सा हम सब हैं। इसका सिंपल रीज़न ये है कि जब हम एक इंसान को ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, वो पर्सन मिट्टी में बदल जाते हैं। दिस इज़ द वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन टू अंडरस्टैंड दस वी आर द पार्ट ऑफ दिस अर्थ। अब ये अर्थ जो यहाँ पे मूव कर रहा है, जो एंटायर जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो एक एनर्जी सिस्टम के थ्रू हो रही है। और जो एनर्जी सिस्टम के थ्रू ये अर्थ मूव कर रहा है, जो एनर्जी सिस्टम इस एंटायर यूनिवर्स में है, वही एनर्जी सिस्टम हमें भी मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर वो एनर्जी सिस्टम ख़त्म हो जाए तो अर्थ घूमना बंद हो जाएगी, हम सब काम करना बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि अर्थ घूमना बंद हो जाएगी और हम स्टिल एक्टिव हैं, हम काम करें। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अगर अर्थ बंद हुई तो हम भी बंद हो जाएंगे, बिकॉज वी आर रनिंग ऑन द सेम एनर्जी। We may say it prana. In the previous episode, we talked about merging yourself to the bigger yourself, or to the true yourself. So this is nothing but we can also say कि ये एक bigger प्राण है और हमारे अंदर एक प्राण है। ये छोटा सा प्राण उस bigger प्राण के साथ मर्ज हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये 5 फिंगर हैं, अगर कल को ये कट ऑफ हो जाए, मेरे हाथ से कट हो जाए, और इमेजिन करो इनके खुद के हाथ पैर निकलने लग जाए, सिर निकलने लग जाए, हर चीज़ निकलने लग जाए ईच इंडिविजुअल फिंगर के, फिर भी ये जो फिंगर है एक दूसरे से शायद वो अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर मेरी बात किया जाए तो वो मेरे से इंडिविजुअली कनेक्टेड है। ये फिंगर ही मेरे से कनेक्टेड है, 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 और ये फिंगर ही मेरे से कनेक्टेड है। अब पॉइंट ये है कि हम जो भी इंसान हैं या फिर ऑल द जानवर जो हैं, वो कहीं ना कहीं इस अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं। शायद मैं आपके साथ कनेक्टेड ना हूँ डायरेक्टली, बट हम अगर मदर अर्थ के थ्रू जाएं तो हम दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो दिस इज़ व्हाट नथिंग बट द प्राणिक सिस्टम इज़। सो द बिगर prana is there, we are the small prana in individual in nature. We are merging our prana into the bigger prana. So this is what the entire concept is, so far what I have understood. अब अगर हमारे अंदर एक प्राणा है, प्राणिक सिस्टम है, एक एनर्जी सिस्टम है, तो वो है कैसा? कई साल पहले कुछ योगीज मुनि ऋषि ने डिस्कवर किया हुआ था। उन्होंने कहा कि देयर आर 72,000 नाडीज इन ह्यूमन सिस्टम्स, यानी कि 72,000 पाथवेज थ्रू विच एनर्जी फ्लोज। और जिस जगह पे वो मीट करते हैं, हर कुछ नाड़ियाँ जाके एक जगह पे मीट करते हैं, फिर यहाँ से कुछ नाड़ी जाके वहाँ पे मीट करते हैं। तो ये जो पाथवेज जो पॉइंट पे मीट करते हैं उसको हम कहते हैं चक्रस। जनरली देयर आर 114 चक्रस इन आवर बॉडी, यानी कि
114 पॉइंट्स जहाँ पे ये नाड़ियाँ आके मीट करते हैं। हाउएवर 2 जो पॉइंट्स हैं वो सर के बाहर हैं और बाकी जो बचे 112 उनमें से 4 चक्रास जो हैं जिनको आप नेचुरली एक्टिवेट नहीं कर पाते हो या फिर मूव नहीं कर पाते हो, वो जहाँ पे हैं वैसे ही रहते हैं। बाकी बचे 108। ये 108 चक्र के साथ आप खेल सकते हो। 108 चक्र जब आप एक्टिवेट कर लेते हो एनर्जी सिस्टम के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि आप वहाँ पे बैठे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हमारे अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, बट समवेयर थ्रू एनर्जी सिस्टम वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, समवेयर थ्रू इस मदर अर्थ वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो इफ आई चेंज the pranas through mother earth, then definitely prana around you can change. If I can go through that path, definitely I am connected to you. सो पॉइंट इज़ दैट कि थ्रू प्राणिक सिस्टम, अगर प्राणिक सिस्टम का साइंस आपको पता है, जो लोग ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जिन लोग को प्राणा के बारे में बहुत कुछ पता है और टर्न ट्विक्स करना पता है, उनका साइंस पता है, वो दूसरे इंसान के प्राण के साथ भी खेल लेते हैं। अघोरियों की बात आपने सुनी होगी। अगर आपने शरीर को बिना नष्ट के कहीं पे फेंक दिया, अगर अघोरियाँ वहाँ पे मिल जाएं तो उस शरीर के अंदर वो जान डाल के उसके साथ खेलते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। सो इस हद तक लोग चीज़ें भी कर सकते हैं। एंड अगर आप 108 को काबू में कर लिए, देन बाकी जो चक्रस हैं वो चक्रस भी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग अबाउट दिस एनर्जी सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड कुंडलिनी। किसी गुरु को अप्रोच करो, जो गुरु आपको सिखाएंगे कि कैसे आप इन चक्रस को एक्टिवेट कर सकते हो। अब होगा क्या कि आपने एनर्जी सिस्टम को मास्टर कर लिया, आपने कुंडलिनी अपनी जागरूक कर ली, तो इसके बाद ना आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बन जाओगे। देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर ह्यूमन हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक इंसान अगर वो सब चीज़ कर दे जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, हम सब ह्यूमंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं इन नेचर, बाय नेचर। बट पॉइंट है कि हम सब ने अपने पोटेंशियल को कभी पहचाना ही नहीं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम अपने आप को फील नहीं करते, अपने आप को नॉर्मल ही या फिर नेचुरली फील करते हैं। बट देयर आर सम पीपल जिन्होंने अपनी एक्सट्रीम एक्सटेंट तक को पहचान पाया है, एक्सट्रीम पोटेंशियल तक को हासिल कर पाया है। तो वो जब उस हद तक काम करते हैं, आपको लगता है कि वो सुपर ह्यूमन है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, पर उनके हिसाब से वो नॉर्मल ह्यूमन है, आपके जैसा ही। तो लोग केदारनाथ जाना क्यों पसंद करते हैं? देयर आर सो मेनी डिफरेंट टेम्पल्स ऑफ शिवा, बट केदारनाथ ही क्यों केदारनाथ सबसे ज़्यादा फेमस है? क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ता है, कैलाश दिखता है, पांडवों ने उनको बनाया था। क्यों कैलाशनाथ की जो शिव लिंग है वो एक्चुअली ज़िंदा है। ज़िंदा का मतलब ये नहीं कि उसके फीलिंग्स होंगे, इसके बॉडी और माइंड होंगे, उसका बॉडी माइंड नहीं है, बट प्राणिक एनर्जी उसके अंदर एक्टिवेट है। शिवलिंग को एक्चुअली एनर्जाइज किया जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्सिक्रेशन, यानी प्राण प्रतिष्ठा। एक नॉर्मल सा किसी भी एक वस्तु पे या फिर किसी भी एक चीज़ों पे आप जब प्राण प्रतिष्ठा करते हो उसको कहते हैं कॉन्सिक्रेशन। अब इसको फील करने के लिए आपको मेडिटेशन में उतना परसेप्टिव होना पड़ेगा ताकि आप जब वहाँ पे बैठो तो उसकी एनर्जी को आप महसूस कर पाओ, आपको पता चल पाए। अब दुनिया में ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हैं जिनको अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई इन हिंदू धर्म, इन इंडियन कॉन्सेप्ट, इंडियन कल्चर, गॉड और गॉडेस हम ही बनाते हैं। किसी भी एक चीज़ को जिसको हमको डिवाइन लगता है उसको लेके हम उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। ये एक साइंस है, ये एक टेक्नोलॉजी है थ्रू विच उस एक नॉन लिविंग चीज़ों में हम प्राण डाल देते हैं, हम जान डाल देते हैं उसके अंदर और किसी न किसी चक्र को एक्टिवेट कर देते हैं। अब ऐसे बहुत सारे शिवलिंग है इंडिया में और इंडिया के बाहर जिनमें बहुत सारे चक्रस एक्टिवेट हैं उन शिवलिंग के अंदर। But there are a few shivling like Dhyanalingam which is consecrated by Sadguru. In that particular Dhyanalingam, all the 7 chakras are activated. यानी कि आप अगर उस प्लेस में जाओ, चुपचाप बैठो वहाँ पे, तो आप उस एनर्जी को महसूस कर पाओगे। वो कम्प्लीटली एक ह्यूमन की तरह होता है। एक ह्यूमन के पास आप जब बैठोगे, एक गुरु के पास आप जब बैठते हो, वो अपना हाथ पैर मूव नहीं करते, अपने दिमाग मूव नहीं करते, बस बैठते हैं। आप उनके पास जाओगे, आपको एक अलग सा रेडिएशन, अलग सा महसूस होगा, अलग सा एनर्जी महसूस होगा वहाँ पे। एग्जैक्ट सिमिलर एनर्जी आपको महसूस होने वाला है जब आप ध्यान लिंग के पास जाओगे और वहाँ पे बैठोगे। जनरली अकॉर्डिंग टू द पीपल हु वेंट देयर, वो कहते हैं कि नॉर्मली आप किसी जगह पे जाके बैठो तो आपको ज़्यादा देर, आप नॉर्मली ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे, बट अगर ध्यान लिंग के पास जाके बैठो वहाँ पे तो आप कई घंटे तक ऐसे ही बैठ जाओगे। ये ओनली हैपन्स बिकॉज देयर इज़ अ योगी। वो ध्यान लिंग को भी एक योगी की तरह कहा गया है, दैट इज़ अ योगी बाय हिमसेल्फ, बिकॉज उनके अंदर हमारे जैसे ही प्राण बह रहे हैं। इफ़ यू आर एवर विलिंग to know about spirituality, to go into this particular direction, certainly you go visit to the शिवलिंगस, go visit to some of the temples, जहाँ पे आप जाते ही महसूस करोगे एक अलग सा कामनेस।
definitely there will be lot of people, yet you will feel calm, composed, cool and everything, like शांत पीस माहौल आप महसूस होगी आपको. सो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए. अगर ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं आपके लिए, आप मानते नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखो, स्टिल दीज आर द वे मोर इंटरेस्टिंग थिंग to pursue after, to at least explore or discover after. Thank you so much for watching this video. I hope you understand about the pranic system. In the next video we are going to talk about Adiyogi and the source of yoga, and who was his disciples, and how Patanjali came off, and how what is the yoga and what is the yoga sutra. इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे. योगा सूत्रों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, योगा सूत्र हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इट्सल्फ एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ.